So before starting, English is fine. English Hindi, we'll mix it up. English Hindi mix करेंगे. ऐसा कोई है जिसको English Hindi नहीं चाहिए, मराठी पाहिजे ऐसा कोणी है? Everyone is okay with English Hindi, right? Okay, fine. Yes. So before starting any program, it is an etiquette to chant Mangalacharan prayers. Okay, so I'll first explain what Mangalacharan prayer is actually, and then we'll start the program. So the word itself says Mangalacharan, to invoke auspiciousness in the program, whichever we are starting. And second thing is, the topic which I am sharing to you, you must have read the poster, right? Yes. What was the written on the top poster? Relationships, right? Yep. And by looking at me and my clothes, do you think that I have any experience of past relationships? No, right? You can be, please be vocal. Maybe. Oh, good answer. Good answer. Okay. No, I don't have any experience of the kind of relationship which you are thinking about, but there are multiple types of relationships which we go through in our life, right? So one of such very strong relationship is the relationship between a guru and shishya, between a teacher and disciple. So whatever knowledge I'm going to be sharing with all of you today, of course, it will answer all the queries which you have in your mind as well. The topic has been designed in such a way that you will be getting answers to the answers for which you have come over here. जो questions के answer ढूंढने के लिए आप इधर तक आए हो, you'll be getting that. But now that I was talking about Mangalacharan, I want to say that whatever topic I am going to share, of course I don't have any understanding of that topic, let me be very clear. But I have full trust on my teacher, my Guru Maharaj. He has full trust on his Guru. So the series of the disciplic succession in which I come, or this temple comes, is nothing but Gaudiya Parampara, Gaudiya Vaishnava Parampara, which originated right from Lord Krishna himself. So Lord Krishna gave that knowledge to Arjuna, then further, but it started from Lord Brahma himself. So he gave that knowledge to Brahma, then Brahma to Narada, Narada to Vyas, and then that Shrinkhala, that disciplic succession is continuing. And I have got a chance to listen some of the topics from my gurus. So whatever I have studied from my gurus and whatever they have conferred upon me, I'll be trying to present it in front of you. So just as a prayer of gratitude for all the teachers who are coming in this disciplic succession, this prayer is sung before the starting of the program. Now that you have understood what Mangalacharan prayer is, I request everyone to join your hands and very calmly close your eyes. Please try to meditate on each and every shloka which I will be saying. Okay? And with that, Mangalacharan will begin our program. Okay? Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sham Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री गुरुदेव की जय। Okay, now that we are done with the Mangalarchan prayers, I request everyone आगे आओ थोड़ा सा ना, क्योंकि और भी लोग आएंगे पीछे से। Starting with the very fun ride. तो आपको पता है कि आज टॉपिक में हम कौन से बुक से रेफर करने वाले? मोस्टली आपने पोस्टर में पढ़ा होगा, राइट? रामायण। तो the reason behind choosing रामायण specifically because रामायण ये ऐसा बुक है कि जिसमें हर एक रिलेशनशिप के बारे में इतने परफेक्ट एग्जांपल्स मिलेंगे कि there is no other book, no other novel rather I would say in this world which has portrayed the interpersonal relationships to such a depth and with such a clarity. कोई भी एक व्यक्ति आप उठा के देख लो रामायण से, the kind of brothers we have, the kind of son we have, the kind of daughter we have, kind of daughter-in-law we have, the kind of father-in-law we have, kind of mother-in-law we have, everything is utmost exemplary. Kind of teacher we have, kind of disciple we have, सब कुछ top notch. So that was the reason why we chose this particular book, Ramayana. And the second reason was रामलला का स्थापना कब हुआ था? 1 साल पहले exactly, right? So considering this occasion as a very auspicious occasion, we have come up with this सेशन। ओके, सो सेशन का नाम है अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आई एम वेरी श्योर आपके जीवन में कभी तो ऐसा टाइम आया होगा कि आपको किसी ने तो मिसअंडरस्टैंड किया होगा, राइट? आई एम वेरी श्योर हर कोई के जीवन में ये एक पॉइंट आता ही है। मे इट बी योर पेरेंट्स, मे इट बी योर सिबलिंग्स, मे इट बी योर कजिन्स, मे इट बी समवन स्पेशल, बट ये पॉइंट तो आता ही है हर एक के जीवन में कि हम मिसअंडरस्टूड हो चुके हैं। मतलब मैं करना कुछ और चाह रहा था और उसने समझ ही कुछ अलग ले लिया। और उस पॉइंट में जो मन में विचार होते हैं ना, इट इज आई मीन अपना ही मन अपने को इतना खाता है अंदर से कि मैं क्या करूं इस बंदे को आगे के समझाऊं। इवन इफ यू आर रेडी टू बैंग योर हेड, सामने वाला बंदा बंदी सुनने को तैयार है ही नहीं। आई एम वेरी श्योर हम सब लोग इस सिचुएशन से गए एंड बहुत ही खट्टी सिचुएशन होती है। No one ever wants to go through that situation, but I'm very sure हम regularly situation से जाते ही रहते हैं। So ऐसा ही typical situation रामायण में एक बंदे ने फेस किया था जिसका नाम था भरत। Everyone familiar with भरत? Who was भरत? राम जी का छोटा भाई। राम जी के टोटल कितने भाई थे? राम और वो सब मिलके 4। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सबसे बड़े राम, दूसरे नंबर पे आते थे भरत। ठीक है, भरत किसके पुत्र थे? मैं थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच दूंगा ताकि जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़े आपको रिलेट करने में इजी होगा। आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग इट, बट स्टिल। राम जी की माँ कौन? कौशल्या। भरत जी की माँ कौन? कैकेयी। लक्ष्मण जी की माँ कौन? सुमित्रा। शत्रुघ्न की माँ कौन? सुमित्रा। करेक्ट। राम जी के पिता का नाम क्या है? दशरथ। दशरथ की मेन कितनी पत्नी थी? 3। अभी हमने देखी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या से आते हैं राम, कैकेयी से आता है भरत, सुमित्रा से आते हैं 2। कौन कौन? लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। जैसे सुमित्रा क्या करती है? लक्ष्मण को भेजती है प्रभु श्री राम के सेवा में, वैसे ही शत्रुघ्न को भेजा जाता है भरत जी के सेवा में। तो भरत जी अपने जीवन में अनेक बार उनके कैरेक्टर को मिसअंडरस्टैंड किया गया है। रामायण में वाल्मीकि जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, बट हाउ, और वो अलग अलग बंदों के मतलब अलग अलग रिलेशंस में, कभी मम्मी उनकी माता ने, कौशल्या ने कैसे उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया, कभी उनके गुरु ने कैसे उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया, कभी उनकी खुद की अयोध्या की प्रजा ने उन्हें कैसे मिसअंडरस्टैंड किया। ऐसे अलग अलग 6 टॉपिक्स हम देखेंगे एक कंटिन्यूस स्टोरी में, और एक स्टोरी में बंदा एक ही टाइम पे 6 बार मिसअंडरस्टूड होता है। ओके, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है उसके साथ। डिस्पाइट ऑफ दैट, हाउ ही कम्स आउट ग्लोरियस,
and how is he victorious, and how is his character so exemplary that Valmiki Muni is not stopping in singing the glories of Lord in Bharat, in Ramayana. तो कैसे वो हम स्टोरी के माध्यम से देखेंगे, बहुत सुंदर स्टोरीज होगी. ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ऑफ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस. तो प्लीज आई वुड आस्क एवरीवन फास्टन योर सीट बेल्ट्स, बकल अप योर शूज. और किसी को भी बीच में थोड़ा सा भी बोर हो रहा है ना, प्लीज टेल मी, आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. पर्पसली हमने ये स्टोरी फॉर्म में ही रखा है, कोई ऐसे ज्ञान की बात ज्यादा होने वाली है नहीं. ठीक है, तो आप ऐसे मत समझो कि कोई तो बाबा बैठा है और आस्था चैनल का प्रवचन चल रहा है. नो, आई एम जस्ट वन ऑफ अमंग ऑल ऑफ यू गाइस, राइट. मेरा उम्र ज्यादा है भी नहीं, ठीक है, आपकी जितना ही है ऑलमोस्ट, लगभग, कम भी होगा कि कोई लोगों से. ठीक है, फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस जर्नी ऑफ रामायण और भरत को कैसे लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया. तो कहानी शुरू होती है कहां से, जब राम जी को वनवास भेजा जाता है तब भरत और शत्रुघ्न कहां थे, कहां थे, नाना के पास. कहा था उनका घर, कैकेयी प्रदेश में, कैकेयी देश में, जहां की रानी, जहां की राजा की कन्या कैकेयी थी, उस अपनी नैनीहाल में भरत और शत्रुघ्न शादी के बाद वहां चले गए थे. किधर, कैकेयी देश, जो आज का कहा है, अफगानिस्तान में. ठीक है, तो अखंड भारत का जो हम पिक्चर देखते हैं, राइट. सो अफगानिस्तान में कैकेयी के पिता वहां रहते थे, और फिर वहां शत्रुघ्न और भरत उनके पास अपने नैनीहाल में बड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे. उसी टाइम पे अननोन ऑफ एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन अयोध्या, दे आर स्पेंडिंग देयर रेगुलर लाइफ वेरी हैप्पीली इन कैकेयी प्रदेश, ओवर देयर इन अफगानिस्तान. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर अयोध्या में, ये तो स्टोरी आप सबको पता होगी. मंथरा कैकेयी को भड़काती है, कैकेयी जाके दशरथ जी से वर मांगती है कि आपने मुझे 2 वर दिए थे उस टाइम पे जब मैंने आपको बचाया था उस युद्ध में, और मुझे 2 वरदान क्या चाहिए कि सबसे पहला मेरा बेटा राजगद्दी पे बैठे. उधर तक अच्छा था, मतलब इवन दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर दशरथ महाराज, बट एटलीस्ट वो तो डाइजेस्ट कर सकते थे एक दिन. बट सेकंड बार वो क्या मांगती है कि राम जी को 14 सालों तक वनवास दिया जाए. नाउ व्हाई, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस स्पेसिफिक नंबर 14, आपको पता है. त्रेता युग में ऐसे रूल था कि कोई भी अगर व्यक्ति अपने उसका जो होल्डिंग लैंड है उससे 14 इयर्स तक अपने घर से दूर रहता है, तो वो लीगली उस घर का ओनरशिप छोड़ देता है. तो इवन इफ लॉर्ड राम रिटर्न्स बैक फ्रॉम हिज वनवास आफ्टर 14 इयर्स, ही वोंट बी ट्रीटेड एज किंग. दिस कैकेयी एंश्योर्ड. जो आज चलते आजकल के डेट में, कलयुग में, दिस हैज बॉइल्ड डाउन टू आई गेस 12 और 11 इयर्स. तो आपको पता होगा कि जब आप रेंट एग्रीमेंट करते हो तो वकील सजेस्ट यू कि मैक्सिमम 11 इयर्स का ही करो. क्यों, 11 साल के बाद अगर कोई रेंट वाला आपके प्रॉपर्टी में रहता है तो उसके ऊपर वो अधिकार दिखा सकता है. सो रूट्स आर थ्रू रामायण. ओके, आई एम इवन ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है, तो कैकेयी वाज वेरी स्ट्रेटेजिक इन हर प्लानिंग कि 14 साल तक मेरा बेटा राज सिंहासन पर राज करेगा. उसके बाद यदि राम सीता वनवास से रिटर्न आते भी है, शी मेड श्योर कि वो राजगद्दी पे कभी बैठ नहीं पाएंगे. क्यों, उनका ओनरशिप लीगली चला गया है. ये जब बात सुनते हैं राम जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. सीता जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास के लिए निकलते हैं. और अभी देखो प्रसंग क्या है. अयोध्या में दशरथ महाराज बिल्कुल ही बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं. 1-2 ही व्यक्ति है जो बहुत खुश है, मंथरा और कैकेयी. अयोध्या की हालत है, पूरी अयोध्या बिखरी पड़ी है. कोई भी अन्न नहीं खा रहा, कोई भी पानी नहीं पी रहा, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी रो रहे हैं राम जी के विरह में. वहां राम सीता लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़ दी है और वो वन में चले गए हैं. वहां पे ऊपर अफगानिस्तान में इन दोनों बच्चों को कुछ भी पता नहीं है कि अपना परिवार यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा है. और कुछ ही दिनों में दशरथ महाराज का देहांत हो जाता है. जैसे ही दशरथ का देहांत हो जाता है, जिम्मेदारी आती है गुरु वशिष्ठ और सुमंत्र के ऊपर. नाउ गुरु वशिष्ठ सेज कि अगर इस पॉइंट पे जब राजाहीन अयोध्या है, कोई शत्रु प्रदेश हम पे आक्रमण कर सकता है और
इधर की स्थिति को पुनः कंट्रोल में लाने के लिए हमें दशरथ जी के दूसरे बेटे यानी कौन, भरत महाराज को पुनः अयोध्या को बुलाना पड़ेगा, ताकि राम, इन द एब्सेंस ऑफ लॉर्ड राम, भरत वुड बी केपेबल टू हैंड ओवर द किंगडम, टू रन द किंगडम, जो नॉर्मल कामकाज है उनका। तो भरत जी को एकदम अर्जेंट नोट भेजा जाता है कि हे भरत एंड शत्रुघ्न, यू प्लीज कम डाउन टू अयोध्या as fast as you can, ASAP. But he doesn't mention कि क्यों बुलाया है। But भरत महाराज was so intuitive कि आसमान के नक्षत्र देखते हुए और आजू बाजू पर्यावरण में होने वाले चेंजेस को देखते हुए he immediately understands कि कुछ तो अनहोनी घटी है। क्या अनहोनी घटी है, he is not sure. But he was so intuitive कि उनको पता चलता है कि कुछ तो अनहोनी घटी है, एंड नाउ आई नीड टू गो बैक, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने इतना अर्जेंट न्योता भेजा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विच हैज हैपेंड। और ये कंटिन्यूअसली ये बात शत्रुघ्न को कहते हुए अपने घोड़े पे चढ़ते हैं और एकदम फास्ट घोड़ा दौड़ाते इधर आते हैं, किधर, अयोध्या की बॉर्डर्स पे। जैसे अयोध्या के बॉर्डर्स पे आते हैं, वो देखते हैं कि उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था वैसे अयोध्या आज बिखरी पड़ी है, पूरे पत्ते सूख गए, कोई गाय भैंस भी पानी नहीं पी रहा, लोग रास्ते पे बैठ के राम जी की राह देख रहे हैं कि कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। अभी इनको तो कुछ पता नहीं, इनको ये भी पता नहीं है कि राम जी इधर है नहीं, ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी नहीं पता कि मेरे पिता का देहांत हो चुका है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, उधर एक चौराहे पे एक मंदिर होता है जहां सारे रघुवंश का एक एक फोटो लगा होता है कि अब तक कितने रघुवंश में राजा हुए हैं जिन्होंने देह त्याग कर दिया है। उधर कोने में वो जाते हैं और देखते हैं कि मैं अयोध्या के अंदर घुसने से पहले मेरे परम पिताओं का, मेरे वंश का, रघुवंश का आशीर्वाद लेके जाता हूँ। जैसे एक एक फोटोग्राफ से वो आगे बढ़ते हैं, लास्ट में वो देखते हैं पूजा की थाली लेके जाते हैं, सामने किसका फोटो है, महाराज दशरथ का। जैसे वो ये देखते हैं, उनके हाथ से थाली छूटती है और बिल्कुल रोते हुए जाते हैं किसके पास, सर्वप्रथम अपनी माता के पास, कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा है, कैसे हुआ है। और जैसे ही वो अपनी माता की इधर एंटर कर रहे हैं, उनकी माता क्या बोल रही है उन्हें, शी इज वेलकमिंग हिम विथ हर ओपन आर्म्स एंड शी इज वेरी हैप्पी। तो नाउ देखो, पहला शौक उन्हें ये लगा है कि अयोध्या बिखरी पड़ी है, दूसरा शौक उन्हें ये लगा है कि मेरा पिता का देहांत हो गया है, ऑन टॉप ऑफ दैट उन्हें तीसरा शौक लगता है कि मेरी सगी माँ जो दशरथ महाराज की पत्नी है, शी इज हैप्पीली वेलकमिंग मी। व्हाट इज दिस हैपनिंग। और उनको दशरथ महाराज को, भरत महाराज को फिर कई पूरा नरेशन देती है। दशरथ हैज ब्रोकन डाउन, ही इज कंप्लीटली कोलैप्स्ड। एक कोने से वो बैठ के बस सुन रहे हैं अपनी माता ने क्या क्या मिसहैप किया है। और जैसे वो ये सुनते हैं, अपनी माता के ऊपर चीख पड़ते हैं और कहते हैं कि तुझ जैसी स्त्री का मुझे चेहरा भी फिर से नहीं देखना। और उनका मन कर रहा था कि इसको मैं तत्काल इसका शिरच्छेद कर दूं, लेकिन क्योंकि he was trained in a good राजकीय शिष्टाचार, he didn't do that. Firstly, she being his mother, and secondly, she being a lady. उन्होंने अपने क्रोध को कंट्रोल किया और वो गए कि इस स्थिति में अभी उनको पूरी सिचुएशन पता चल गई है कि राम, सीता, लक्ष्मण दरबार राज्य में है नहीं, पिता का भी देहांत हो चुका है। इस पॉइंट पे भरत को एक ही सॉल्यूशन दिखता है कि मैं किसके पास जाऊं कंसोलिंग के लिए। तो वो जाते हैं किसके पास, क्या हो गया, कर्सर दिख रहा है किसी? तो वो जाते हैं किसके पास, कौशल्या के पास, क्योंकि उन्हें लगता है कि शी इज द वन हु इज इन ज्ञानमय कोश और वो मुझे संभाल पाएगी। जैसे ही कौशल्या माता भरत महाराज को अपने समक्ष देखती है, वो क्या करती है, बिलक के उन्हें रोने लगती है। नाउ भरत महाराज हैज हिमसेल्फ कोलैप्स्ड, ही इज थिंकिंग कि आई विल गो फॉर कंसोलिंग माई सेल्फ टू कौशल्या, और कौशल्या भी क्या कर रही है, बिलक बिलक के रो रही है कि हे भरत, तुम्हारे भाई और सीता वनवास चले गए और तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इतना कहते कहते रो रही है, रो रो के बेहोश हो जाती है। और भरत क्या कर रहा है,
उन्हें बेहोशी की हालत से उठाने का प्रयास कर रहा है। कुछ क्षणों में कौशल्या गेन्स बैक हर कॉन्शियसनेस एंड she comes back to her consciousness, and as soon as she comes back to her consciousness she pushes भरत back। क्यों और क्या कहती है पता है? कौशल्या अभी कह रही है भरत को, हे भरत, तू तो अभी बहुत खुश होगा ना। Now these are the exact words which वाल्मीकि मुनि is describing in रामायण। क्या कह रही है? जिस माता के पास लास्ट होप था भरत का, उस वो माता क्या कह रही है भरत को कि हे भरत, तू तो बहुत खुश होगा ना आज। ये पूरा तुम्हारी माता कैकेयी ने जो ये पूरा स्वांग रचा था तुम्हारे लिए, आज वो पूर्ण हुआ और तुम्हें अभी राज सिंहासन भी मिलेगा और मेरा राम और मेरा लक्ष्मण और मेरी सीता भी राज दरबार से चली गई है, तो आज तो तू बहुत खुश होगा ना। ले, ये तेरी अयोध्या जो बिखरी पड़ी है, ये अयोध्या आज तेरा इंतजार कर रही है। जा अपने राज सिंहासन का स्वीकार कर दे और राजापन और इस अयोध्या का स्वीकार कर। जैसे ये वचन भरत महाराज सुन रहे हैं, भरत महाराज का ऑलरेडी शॉक्ड हृदय, मतलब दिस इज द फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग विच भरत इज एनकाउंटरिंग इन हिज लाइफ। ठीक है, हम क्या करते हैं अभी ना, बहुत और थोड़ा नजदीक आके बैठते हैं ताकि क्या होगा, पीछे से जो भी आएंगे ना डिस्टर्बेंस नहीं होगा लेक्चर में, ये तो बार बार लिंक टूटेगी। ठीक है, तो और आप थोड़ा सा और आके आइए और पीछे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए। ठीक है, क्या फैन चाहिए कि नहीं किसी को चाहिए फैन? ओके, नाउ विल नॉट स्टॉप इन बिटवीन। ठीक है, नाउ आवर इंजन थोड़ा गर्म हो चुका है। ठीक है, इंटरेस्टिंग राइट? मजा आ रहा है? अब जो होगा ना आगे, दैट विल लीव यू ऑल इन टीयर्स इज व्हाट आई वुड से। भरत को मतलब ऑलरेडी आघात पहुंचा है कि भाई, दोनों भाई और उनकी माता के समक्ष उनकी माता सीता वो भी है नहीं, पिता दशरथ का भी देहांत हो चुका है, कई से कुछ होप्स है ही नहीं। जिस माता से होप्स थे वो क्या कह रही है कि हे भरत, तू तो अभी खुश होगा ना। शी इज लाइक टॉन्टिंग हिम वेरी मच। तो भरत क्या करता है इस पॉइंट पे, यू विल बी वेरी शॉक टू नो। भरत कहता है, जैसे ये शब्द भरत सुनता है, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ कौशल्या वाज पियर्सिंग राइट थ्रू हिज हार्ट, क्योंकि दैट वाज द ओनली होप फॉर विच ही हैड कम टू हर, और वो भी नहीं मिला। मतलब हमें जीवन में कोई एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना कि इस बंदे के पास में जाऊंगा तो मेरा जो कुछ भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। किस एक्सपेक्टेशन से हम अगर जाते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस ही पूरे ना हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट not only that person is capable enough to not fulfill your expectations, but at the same time he has done so grave misunderstandings against you कि तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा कि क्या करूं, and on the top of that he is already घायल हो चुके हैं वो पूरे। Now at this point he takes a series of words, वो गर्जना करते हैं कि हे माता, इस जो प्लान था मेरे माता कैकेयी ने बनाया हुआ, इस प्लान में अगर मेरी हिस्सेदारी तनिक भी है, ये प्लान के बारे में अगर मुझे पता पहले से भी है, तो इतने सारे पापों का मैं भागीदार होऊंगा। और वो सीरीज ऑफ पाप पढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि पिता के विरुद्ध द्रोह करने का पाप मुझे लगे, एक भाई के विरुद्ध द्रोह करने का पाप मुझे लगे, एक माता के विरुद्ध द्रोह करने का एक पाप मुझे लगे। इतना ही नहीं, एक निशस्त्र सोल्जर के ऊपर वार करने का पाप मेरे पे लगे, एक शस्त्रहीन सोल्जर जो रणांगन छोड़ के मेरी शरण में आया है उसका शिरच्छेद करने का पाप मुझ पे लगे। इतना ही नहीं, एक डियर फ्रेंड का सीक्रेट जो मेरे पास रखा है वो डिस्क्लोज अगर मैं किसी और बंदे के पास जाके करता हूं, उसका भी पाप मुझे लगे। एक सोती हुई गाय को अगर कोई लात मारता है, उसके ऊपर अगर कोई प्रहार करता है, उसका भी पाप मुझे लगे। एक बंदा जिसने किसी को अपने काम के लिए रखा है, वो उसका काम पूर्ण होने के पश्चात भी अगर उसे इनफ धन ना दे, तो उसका भी जो पाप है वो भी पाप मुझे लगे। और वो ऐसे पाप गिनते ही जा रहे हैं, तब जाके कौशल्या होश में आती है कि मैं क्या कर रही हूं, और वो जाके भरत के मुख पे हाथ रखती है कि हे भरत रुक जाओ, हे भरत रुक जाओ। और इसके बाद भरत शांत हो रहा है और कौशल्या एक बड़ी गर्जना कर रही है। क्या गर्जना कर रही है कि हे भरत, आसमान में जो अभी चांद बैठा है वो भी एक बार अपनी रोशनी से पॉइजन एमिट करना स्टार्ट कर देगा।
हिमालय में बैठा हुआ बर्फ भी एक बार अपनी शीतलता छोड़ के अंगारे जलाना स्टार्ट कर देगा। यही नहीं, पानी में रहने वाले मछली भी अपना जीवन पानी से छोड़ के बाहर जमीन पे आके व्यतीत करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इवन मे स्टॉप इरेडिकेटिंग सिंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द डिवोटेड पीपल, बट स्टिल माय भरत cannot do anything wrong against my other son, Lord Ram. So this was the sincerity which Bharat showed over there. And what was the transformation which we saw over here? The transformation was very immediate and the transformation was long lasting. Now जैसे ही भरत बाहर आता है उस रूम से, भरत is thinking something to himself कि माता ने जो मुझे कहा इसके बारे में अभी मैंने क्या सोचना चाहिए। Now the issue has been sorted, misunderstanding has been sorted. Bharat gave a beautiful monologue, then Kaushalya gave a beautiful monologue, which then made sure कि उन दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। बट नाउ कुछ शंका के बादल अभी जैसे हमारे मन में आते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट होने के बाद भी, क्या वो भरत के मन में आ रहे हैं? विल सी। आई विल गिव यू वन शॉर्ट स्टोरी। एक बार एक बच्चा होता है, वो उसकी बहुत बुरी आदत होती है, वो किसी को भी गाली देके बात करता था, किसी को भी बहुत गंदी गालियां देके बात करता था। एक दिन क्या होता है, उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं और वो क्या कहते हैं कि तू एक काम कर, तू जितनी भी गालियां देगा ना, एक गाली देने के बाद ही बिल्ड्स वन प्लाईवुड का टुकड़ा वो लाते हैं और कहते हैं कि एक बार अगर तू गाली देगा तो तूने वो प्लाईवुड में एक किला ठोकना है, ठीक है। दूसरी बार गाली देगा तो पूरा किला ठोकना है। तो वो कहता है कि बट व्हाट टू डू आफ्टर दैट? देन हिज फादर सेज फाइन, आई विल टेल यू व्हाट टू डू आफ्टर दैट। आफ्टर यू आर फिनिश्ड नेलिंग द कंप्लीट बोर्ड, पूरा बोर्ड के ऊपर जब कील ठोक जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली करना क्या है। कुछ दिन होते हैं और कुछ दिनों बाद वो पूरा का पूरा बोर्ड नेल से भर जाता है। एंड नाउ हिज फादर इज सेइंग कि he comes to his father and tells him कि ये बोर्ड पूरा नेल से भरा हुआ, जैसे आपने कहा था ना, what am I supposed to do? So his father says, तुमने जिस व्यक्ति को गाली देने के बाद एक एक खिलाड़ मारा था, now you do one thing कि उस व्यक्ति को जाके माफी मांगनी है और एक एक कील बाहर निकालनी है। जिस व्यक्ति से माफी मांगोगे वो गाली देने के लिए, वो एक कील बाहर निकालना है। जैसे फर्स्ट पर्सन यू हैव गिवन कस वर्ड टू, वो जाके उसको सॉरी बोलना है और उधर से कील बाहर निकालनी है। सो दिस his son goes and does all the things और पूरा कीला सब निकालने के बाद वो बोर्ड से he comes back to his father and then his father shows him कि are you sure कि वो लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया? Then he is like yes I'm very sure वो लोगों ने मुझे माफ कर दिया। Then his father says like look at this board, even though तुमने सबको सॉरी कह दिया है, लेकिन तुम्हारे कील ने जो इम्पैक्ट किया था वो इम्प्रेशंस कील निकालने के बाद भी उस बोर्ड पे अभी भी है। क्या वो बोर्ड अभी भी उसी हालत में है जिस हालत में मैंने तुम्हें दिया था? नो राइट, उसमें इतने छेद हो गए हैं कि दैट बोर्ड इज नॉट इन द एग्जैक्ट सिचुएशन इन विच आई गेव इट टू यू। सो कहने का मर्म क्या है कि भले ही हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट हो जाते हैं, बट बहुत बार मिसअंडरस्टूड जो बंदा हो चुका है उसके मन में शंका के बादल चलते रहते हैं। अब हम भरत महाराज के कहानी से ये भी सीखेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट होने के बाद उस शंका के चंगुल से, उस बादल से, उस चक्रव्यूह से कैसे बचा जाए, और क्या भरत महाराज उस शंका के बादलों के घेरे में आ भी गए या नहीं। तो जैसे वो उस रूम से बाहर गए थे, उन्होंने खुद को 3 क्वेश्चंस पूछे। क्या क्वेश्चन पूछा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी ऑल नीड टू आस्क टू आवरसेल्व्स कि मेरी माता ने मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया? क्या उसका कोई पर्सनल प्रॉफिट या पर्सनल लॉस था क्या मुझे क्रिटिसाइज करने में? क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। Why was she criticizing me? What was the purpose of her criticism? And if there was any purpose at all, was it out of her personal profit or was it out of her personal pain? Second question which Bharat asked to himself is the criticism coming from the person to whom which I respect? क्या ऐसा बंदा मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूं, करती हूं? क्वेश्चन नंबर 3 कि जो बंदा मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या क्रिटिसिज्म उसका हैबिट है कि नहीं है? Got it? Very logical questions.
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसे मिला जैसे वो सोचा कि जो व्यक्ति मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है कि क्या उसका कोई पर्सनल प्रॉफिट था इस क्रिटिसिज्म के पीछे? नो, राइट? सो ही अंडरस्टूड दैट कि अब तक माता कौशल्या को कोई ऐसा मिला नहीं था कि पुत्र वियोग होने के पश्चात, पति का वियोग होने के पश्चात अपने मन की जो बातें हैं, अपने जो इमोशंस है किसी के सामने एक्सप्रेस कर सके। इतने दिनों से पड़े हुए इमोशंस माता कौशल्या के मन में, हृदय में वैसे ही पड़े हुए थे, और जैसे उन्होंने मुझे देखा वो सारे इमोशंस बाहर आए, और वो माता कौशल्या का राम जी के प्रति और दशरथ महाराज के प्रति का प्रेम बोल रहा था, ना कि मेरे प्रति का क्रोध। यू गेटिंग इट? इवन दो द वर्ड्स वर सेम, बट तफावत देखो कितनी ज्यादा है दोनों के पीछे का रीजंस की। ठीक है? आई मीन वी कॉल लॉर्ड कृष्ण एज भावग्राही जनार्दन। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट द पर्सन हु considers our actions. He does consider our actions, but more importantly he considers the bhavana behind that action, and this is what Bharat Maharaj is doing right now. What Bharat is asking कि मैं मानता हूं कि माता ने बहुत ही कठोर वचनों का इस्तेमाल किया। आज तक मैंने इतने कठोर वचन माता कौशल्या से मेरे लिए नहीं किसी के लिए भी सुने थे। आज ये स्त्री अगर इतने कठोर वचन इस्तेमाल कर रही है, आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग ही अंडरस्टैंड्स दैट ये उनका मेरे प्रति क्रोध नहीं था, अपितु ये राम जी के प्रति और दशरथ महाराज के प्रति उनका जो प्रेम है वो प्रेम बात कर रहा था। So first question is answered. Second question is the criticism coming from the personality I respect? Then definitely yes. माता कौशल्या को बचपन से भरत महाराज इतना रिस्पेक्ट करते थे, तो वो अगर एक दो कटु शब्द कह भी देती है तो क्या मैंने वो चीज इतनी मरे हुए हृदय पे लेनी चाहिए? No, right? So this is the way he consoles himself. And third thing he asks is क्या ये माता कौशल्या का नेचर ही है कि किसी को भी क्रिटिसाइज कर दे? No, right? मतलब उन्होंने जो माता कौशल्या देखी है आज तक, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। तो जो माता कौशल्या उन्होंने देखी है आज तक, क्या वो माता कौशल्या सभी को अपने वर्तनुक में ऐसे ही क्रिटिसाइज करती थी? नो, राइट? नाउ ही रिकलेक्ट्स वन अनदर इंसिडेंट इन हिज माइंड। उन्हें क्या पता चलता है कि जब दशरथ महाराज को और कैकेयी का विवाह हुआ था, उसके पश्चात एक ड्रास्टिक चेंज दशरथ महाराज के इमोशंस में हुआ था। क्या था वो चेंज? वो चेंज ये था कि उनका कौशल्या के प्रति प्रेम तो था, अपितु उनका प्रेम कैकेयी के प्रति थोड़ा सा ज्यादा था। क्यों? कैकेयी उम्र में कौशल्या से कम थी, नवयुवती थी और बहुत ही सुंदर थी, तो उसके सुंदरता को आकर्षित होते हुए दशरथ महाराज कौशल्या से थोड़ा सा डिस्टेंट हो गए थे। नॉट दैट ही वॉज नॉट लाइकिंग हर, बट ही वॉज गेटिंग लिटिल बिट डिस्टेंट फ्रॉम हर। और इस पॉइंट पे आके भी माता कौशल्या ने क्या किया था? नाउ दिस भरत महाराज इज रिकलेक्टिंग। इस पॉइंट पे आने के बाद भी माता कौशल्या ने ये किया था कि कौशल्या बीइंग समवन इन ज्ञानमय कोश, she thought कि if my husband is not giving me complete attention, that is fine. That was a diplomatic policy why he had to marry with Kaikeyi. That is fine. What I'll do, I'll start a gurukulam of my own. और इस अयोध्या में गुरुकुल स्थापना करके मैं इसमें एंगेज हो जाती हूँ, ताकि उस वाले प्रेम की जो कमतरता है वो हर बार मुझे भापेगी नहीं। ठीक है? So this is what she was thinking. Now this shows that character of कौशल्या was like a eagle. अगर कोई गरुड़ हवा में उड़ रहा है और कोई कौवा आके उसे अगर चोंच मारेगा, तो would गरुड़ और that eagle engage in fighting with that crow? Definitely not. It would be his disrespect. What would Garud do? What would that eagle do? He will raise his height to such a level that crow cannot ever reach him. Getting it? So this is what was the mood of Mata Kaushalya. And this Bharat Maharaj is recollecting in his mind. वो टेप चल रही है उनके पीछे. And then he understands कि no, this is not her nature. उनके खुद के ऊपर भी जब आई थी चीज, then she chose some different direction, but she never went and confronted with Dasharath that, hey Dasharath, me being the eldest queen, you should be giving me more time than the one who has come right now. No,
she was very clear in her thoughts, and this helped Bharat Maharaj to get out of that badal of Shanka very quickly. And then the next story unfolds. 12 दिन तक इतने दिनों तक इनका शरीर को अग्नि नहीं दिया था, क्योंकि लड़का है ही नहीं अग्नि देने के लिए, अग्नि संस्कार कैसे होगा। तो इतने दिन तक दशरथ महाराज की बॉडी ऐसे ही एक तेल में पेटी में बंद करके रखी थी। ये होने के बाद इमीडिएटली, नाउ लुक एट द मेंटालिटी ऑफ दिस गाय भरत। इतना सब कुछ फेस करने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप ही इज गोइंग एंड डूइंग इज परफॉर्मिंग फाइनल राइट्स फॉर द बॉडी ऑफ हिज फादर, बिलोवेड फादर, जिनसे वो इतना टाइम तक अलग रहा था, उनकी बॉडी सामने देखकर। और जैसे ही उनकी बॉडी को अग्नि दिया जाता है, 12 दिन का मॉर्निंग पीरियड मनाया जाता है पूरी अयोध्या में। और एक दिन 12 दिन के बाद 13वें दिन की सुबह उसकी होगी अभी फिर से टेस्ट, किसके द्वारा? गुरु वशिष्ठ के द्वारा। गुरु वशिष्ठ क्या कर रहे हैं? जिस शयन कक्ष में भरत महाराज सो रहे हैं, उस शयन कक्ष में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कोई सुंदर गायकों को भेजते हैं भरत महाराज को उठाने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्या हो रहा है? वशिष्ठ कोने से देख रहे हैं भरत महाराज। नाउ ट्राई टू इमेजिन, भरत महाराज इज स्लीपिंग in his shayan kaksha, and few singers very melodiously singing are entering into that room where Bharat Maharaj is sleeping, and they start glorifying Bharat. वो भरत की ही ग्लोरीज गा रहे हैं और उसके बाद रघुवंश की ग्लोरीज गा रहे हैं। और जैसे ही इस धुन का स्टार्टिंग भरत के कानों में पड़ती है, भरत क्या करता है? ताड़ के उठ के उन्हें ब्लास्फेम करना स्टार्ट करता है कि हे, क्या तुम लोग मूर्ख हो? क्यों? क्योंकि जो तुम रिचुअल अभी फॉलो कर रहे हो वो केवल और केवल एक राजा के लिए फॉलो करना चाहिए, ना कि मेरे जैसे तुच्छ राजा के सेवक के लिए। नाउ एज पर कुलाचार क्या होता है कि जो द प्रिंस या जो प्रिसाइडिंग किंग है, उसके लिए इस विधि का पालन किया जाता था नेचुरली इन देयर डिसेंडेंट्स ऑफ रघुकुल। और ये कुल इस ट्रेडिशन का फॉलो जैसे ही भरत के लिए हो रहा है, व्हाट भरत इज डूइंग? भरत हैज स्टार्टेड टू ब्लास्फेम दोस गाइज इन देयर फेस। और जैसे ही ये चीज गुरु वशिष्ठ देखते हैं, गुरु वशिष्ठ अपने मन में खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये गुरु वशिष्ठ ने ही प्लान की हुई एक टेस्ट थी। क्या टेस्ट थी? गुरु वशिष्ठ को ये चीज पता थी कि सामने ग्रॉस लेवल पे फिजिकली बात करते हुए किसी के सामने व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति जब नींद में होता है, देन ही इज वेरी क्लोज टू हिज सबकॉन्शियस, एंड व्हेन द पर्सन इज इन डीप स्लीप, जब बंदा अपने सबकॉन्शियस के सबसे करीब है, उस पॉइंट पे उसकी सबकॉन्शियस डिजायर्स क्या है ये पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो गुरु वशिष्ठ जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि सपने में भी क्या भरत को तनिक भी राज सिंहासन की इच्छा है कि नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इच्छा होती तो भरत महाराज का रूटीन कैसे होता? उस आवाज से वो उठते और अपने नॉर्मल रेगुलर रूटीन को चालू करते विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये रिचुअल केवल और केवल राजाओं के लिए किए जाती है। बट भरत वाज सो अलर्ट इवन इन हिज सबकॉन्शियस कि उन्हें पता था कि ये सिंहासन केवल और केवल दशरथ महाराज के बाद किसी का हो सकता है, तो वो राम जी का है। और ये बात अभी गुरु वशिष्ठ को समझ में आती है। दिस वॉज मिसअंडरस्टैंडिंग नंबर 2 which this was the misunderstanding number 2 जो जिसका सामना अभी जस्ट भरत ने किया है। ठीक है? Not sure why these technical glitches to break up the link. Okay, fine. जैसे ही उनको पता चलता है कि उनकी स्लीपिंग टेस्ट हुई है, तो I mean the lesson to be learned over here is कि it is very easy to cheat someone when we are interacting with them, but it is not that easy to cheat someone in one's sleep. Because at the time of sleeping, Bhagavatam explains that there are multiple stages of sleeping, which is Sushupti and Jagruti, Swapni, Sushupti are the 3 stages of consciousness. So when someone is in Sushupti or when someone is sleeping very soundly, at that time he is
not identifying himself with this body, but with his subtle level of body, which is nothing but mana, buddhi and ahankar, MBA, mind, intelligence and ego. तो क्या इस मन, इंटेलिजेंस एंड ईगो, फॉल्स ईगो के चंगुल में आके थोड़ा सा भी भरत कुछ सोच रहा है क्या? दिस वॉज द टेस्ट विच गुरु वशिष्ठ वांटेड टू टेक. और कैसे था, मतलब जो राज्य बना था, जो अयोध्या का राज्य बना था, राज दरबार बना था, उस राज दरबार में अलग अलग रूम्स थे. मतलब हर एक इमोशन के लिए एक स्पेसिफिक रूम था. नाउ द स्टोरी डेट्स बैक, उसको अभी फिर से पता चल रहा है ये चीज भरत को, क्या कि जब मतलब there was a specific room which was designated only for, which was called as कोप भवन. कोप भवन में क्या होता है? कोप भवन इज नथिंग बट, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसने उस रूम में जाना है, अगर कोई व्यक्ति बहुत सुखी होता है तो उसने बहुत उस रूम में जाना है. इट वॉज जस्ट एज इफ वी डू ऑन यूट्यूब, राइट? अगर मुझे बहुत खुश हो रहा हूँ, मुझे जाकिर खान का स्टैंड अप कॉमेडी देखना है, तो आई जस्ट गो ओवर देयर एंड टाइप जाकिर खान की स्टैंड अप कॉमेडी. अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है तो आई विल गो ओवर ऑन यूट्यूब, टाइप चन्ना मेरिया एंड keep buzzing over it. Fine. So for every emotion there was a specific room designed in Ayodhya. तो एक दिन दशरथ महाराज को ये पता चलता है कि कैकेयी अभी कोप भवन में गई है. दशरथ महाराज ने गलती क्या की, ये देखो. जैसे उन्हें ये पता चलता है कि कैकेयी कोप भवन में गई है, कोप भवन इज डिजाइन्ड इन सच ए वे कि वहां जाते ही बंदा, सुदृढ़ बंदा भी डिप्रेस हो जाएगा. और ये डिप्रेस होके अंदर चली गई है, दैट मीन्स समथिंग बिग हैज हैपेंड. तो व्हाट ही डज, थिंकिंग हिमसेल्फ कि आई कैन प्रोटेक्ट हर एंड आई कैन टेक हर आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, ये क्या करते हैं दशरथ महाराज, गुरु वशिष्ठ को ना भेजते हुए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए उस कोप भवन में एंटर करते हैं. ये फ्लैशबैक में चल रहा है, ठीक है? हमारी स्टोरी अभी फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट में ऐसे चलती रहेगी, सो प्लीज बी अट्यून्ड विद इट, ओके? पूरा अटेंशन के साथ सुनना. तो फ्लैशबैक में उन्हें दिख रहा है कि दशरथ महाराज जा रहे हैं, गुरु वशिष्ठ को पता है कि कैकेयी अंदर है और दशरथ महाराज वहां जा रहे हैं, बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज राजा ने खुद डिसाइड किया कि गुरु वशिष्ठ नहीं जाएंगे, मैं खुद जाके वहां पे बैठूंगा, उसको समझाऊंगा. बट द रिपरकशन वाज 10 minutes Dasharath Maharaj is into Kopa Bhavan. Kaikeyi is out of depression, but the person who went into depression was Dasharath. और आगे की स्टोरी आपको पता है. The story of Kaikeyi asking 2 boons from Dasharath Maharaj happened in that Kopa Bhavan. वो कोप भवन में बोलती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था और आपको मुझे ये देना पड़ेगा. और जैसे ही इस प्रॉमिस का फुलफिलमेंट दशरथ महाराज करते हैं, the person who stays back in the Kopa Bhavan is only single person, who is Dasharath Maharaj, and the person coming out of Kopa Bhavan is Kaikeyi, who has now come out of depression and she is overjoyed thinking कि मेरा बेटे के साथ ऐसा होगा. But on the other hand, जब दशरथ महाराज का मृत्यु होता है, वशिष्ठ मुनि was very intelligent guy. He knew कि अयोध्या का सिचुएशन बहुत खराब है, because now here वशिष्ठ मुनि is giving one philosophy कि mental illness is contagious. जैसे कोरोना है या HMPV अभी जो चल रहा है, हाउ इज दैट कंटेजियस? मतलब एक मेंटली इल बंदे के पास अगर कोई दूसरा सुदृढ़ व्यक्ति भी जाके अगर बैठता है, एंड इफ ही इज नॉट दैट पोटेंट, देयर इज हाई चांस कि इसका डिप्रेशन इसके पास भी चला जाए, इसका मेंटल इलनेस इसके पास भी चला जाए. और वशिष्ठ मुनि नाउ एनालाइज द सिचुएशन कि सबसे पहले पूरे अयोध्या में एक ही बंदी थी जो सबसे ज्यादा डिप्रेस थी. हु वाज दैट? मंथरा. मंथरा के संपर्क में आई कैकेयी. Now, as soon as Manthara comes in interaction with Kaikeyi, the depression was transferred from Manthara to Kaikeyi. जैसे ही कैकेयी के संपर्क में दशरथ महाराज आए, depression was transferred from Kaikeyi to दशरथ महाराज. And when the leader himself is in depression, प्रजा का तो क्या ही कहें. जैसे ही दशरथ महाराज डिप्रेशन में जाते हैं, पूरी की पूरी अयोध्या डिप्रेशन में चली जाती है. एंड नाउ वशिष्ठ इज वेरी श्योर कि इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मैं अकेला समर्थ नहीं हूं. ही वेरी इंटेलिजेंटली व्हाट ही डज, ही सेंड्स दैट इनविटेशन टू भरत. आप समझे कि उन्होंने इनविटेशन क्यों भेजा था? दिस वाज द बैक स्टोरी. फिर उसके बाद भरत आता है. नाउ वी कम टू द प्रेजेंट पॉइंट. अब जैसे ही भरत उठ के अपना रेगुलर लाइफ चालू करता है,
वशिष्ठ इज वेरी वेल कन्विंस्ड, दो लोग तो कन्विंस हो चुके हैं, कौशल्य और वशिष्ठ। वशिष्ठ इज वेरी वेल कन्विंस्ड कि इस बंदे के मन में कुछ भी खोट है नहीं, ही इज वेरी प्योर सोल, बट ही वांट्स टू पोर्ट्रे द सेम थिंग इन फ्रंट ऑफ अयोध्या। और यदि अब जाके अयोध्या के सामने गुरु वशिष्ठ ये ऐलान कर देते कि आज के बाद राज सिंहासन संभालने में हमारे राम जी भी नहीं है और दशरथ महाराज भी नहीं है, तो राज कारोबार संभालेंगे भरत महाराज। अगर ये अनाउंसमेंट अगर वशिष्ठ मुनि जाके करते तो उसका क्या रिपरकशन हो जाता? प्रजा वुडंट हैव एक्सेप्टेड भरत, बिकॉज व्हाट दे वुड थिंक, ये भरत के लिए ही जिस स्त्री ने ये पूरा कटकारस्थान किया था, ये पूरा ड्रामा किया था, इतना बड़ा बखेड़ा किया था, he is coming and taking over this throne as a succeeding person of Kaikeyi, but and not as दशरथ महाराज। तो उनके मन में अभी तक दशरथ महाराज के प्रति इतना स्नेह बिल्डअप आई वोंट से नहीं था, बट रादर आई वुड से इस इंसिडेंस के बाद उनका भी मन थोड़ा सा हिल गया। अगर माता कौशल्या का हिल सकता है तो ये तो साधारण अयोध्या की प्रजा है। तो बट वशिष्ठ मुनि वांटेड टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर दैट ये चीज ना हो, क्योंकि अगर ये चीज होगी तो आगे जाके राज कारभार संभालने में बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देयर माइट बी मास अपहीवल। और अगर पूरी प्रजा ही राजा के विरुद्ध खड़ी हो जाती है तो क्या होता है, हमने आजकल बहुत ही जियोपॉलिटिक्स में देख चुके हैं। एंड वशिष्ठ मुनि बीइंग सच अ ग्रेट डिप्लोमैट, he didn't want this thing to happen, but at the same time he also wanted कि भरत महाराज का जो चरित्र है वो व्हाइट वॉश हो जाए, उनका चरित्र का दर्शन जो अभी स्वयं वशिष्ठ मुनि ने किया था उस चरित्र का दर्शन अभी पूरी प्रजा भी कर सके। तो उसलिए वो क्या करते हैं, वो भरत को राज दरबार में आने का न्योता देते हैं। और क्योंकि अपने गुरु की ऑर्डर है, भरत महाराज क्या कर रहे हैं, अपना सुबह का पूरा रूटीन खत्म करने के बाद राज दरबार में एंटर कर रहे हैं। और जैसे ही भरत महाराज राज दरबार में एंटर कर रहे हैं, गुरु वशिष्ठ स्टार्ट्स डिस्कसिंग अबाउट एक राजा का कर्तव्य क्या है और एक पुत्र का कर्तव्य क्या है। इन दो चीजों के ऊपर वशिष्ठ मुनि स्टार्ट्स गाइडिंग भरत महाराज। क्या बोलते हैं वो? सबसे पहले he gives him 3 examples, 3 stories। सबसे पहला बात वो ये कहते हैं कि अपने राजा ने अपना देह त्याग करने के पश्चात उसका सबसे बड़ा बच्चा जो उधर सक्षम है, वो यदि उधर उपस्थित है तो उसने तत्काल उस थ्रोन को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो पूरी प्रजा में अराजकता फैल सकती है। पॉइंट नंबर 1, वेरी कन्विंसिंग पॉइंट, राइट, वेरी वेरी कन्विंसिंग पॉइंट कि दशरथ महाराज का भी मृत्यु हो चुका है, राम जी भी अभी इस दरबार में है नहीं, तो दरबार छोड़ो अयोध्या में ही है नहीं, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर द एनिमीज ऑफ अयोध्या टू रिकैप्चर और टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। तो व्हाट यू शुड बी डूइंग, जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ अयोध्या, वो उन्हें पता है कि तुमने इस राज सिंहासन को पुनः स्थापित करना चाहिए। लुक एट द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अगर वो सिर्फ कहते कि तुम राज सिंहासन को एक्सेप्ट कर लो, तो उन्हें पता था भरत महाराज एक्सेप्ट करने वाले है ही नहीं। बट गिवन द फैक्ट दैट अगर वो प्रजा का बात सामने रखे तो एटलीस्ट भरत वुड गिव अ सेकंड थॉट। सेकंड बात वो ये कहते हैं कि तुम याद करो, परशुराम को भी उनके पिता ने कुछ एक वचन मांगा था और कुछ ड्यूटीज एक्सप्लेन की थी, जिसके बाद परशुराम ने अपने पिता के कहने पर पूरे विश्व में क्षत्रियों का संहार किया था। तो यू बीइंग अ लॉयल सन ऑफ योर फादर, इट इज योर ड्यूटी दैट यू शुड बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस थ्रोन। एंड देन ही एक्सप्लेन्स द थर्ड स्टोरी। थर्ड स्टोरी क्या है कि वो कहते हैं कि शुक्राचार्य के भी 4 पुत्र थे, और शुक्राचार्य जब बूढ़े होते हैं तब वो अपने पुत्रों के पास जाते हैं फिर से उनका यौवन मांगने के लिए, उनका युद्ध मांगने के लिए, और उन 4 पुत्रों में से 3 पुत्र मना करते हैं, और जो अंतिम पुत्र थे पुरु महाराज, उन्होंने शुक्राचार्य को अपना यूथफुलनेस दिया था, जिसके बाद उनके फलस्वरूप राज्य भी शुक्राचार्य का इसी पुत्र को दिया था। सो इट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ अयोध्या, इट इज योर ड्यूटी towards this throne of Ayodhya, and then it is your duty to respect the words of your father, and because of all these things
you should be now taking over the throne of this Ayodhya and you should be sitting on the Rajasiंहासन. कितना logically framed argument है कि नहीं? कितना logically. Now listen the reply which Bharat is giving. मतलब जब पहली बार मैंने ये reply सुना था भरत के मुख से या रामायण में, तो I was completely flabbergasted कि बंदा किस level of consciousness पे operate कर रहा है. Just look at the level of consciousness on which Bharat is operating. भरत क्या कह रहा है इस पॉइंट पे कि हे गुरुवर, आप एक चीज भूल रहे हो. आभूषण डालने के बाद व्यक्ति सुंदर दिखता है, बट अगर व्यक्ति नग्न हो, अगर व्यक्ति ने कपड़े ही नहीं पहने और उसके ऊपर अगर वो आभूषण चढ़ाएगा, तो हाउ फनी वुड दैट लुक? यू गेटिंग इट? आर्गुमेंट समझ रहे हैं किसी को? कोरिलेट कर पा रहे हो? What Guru Vasishtha has said, it is your responsibility towards the subjects of Ayodhya, towards the subject of, towards this throne and towards your father, that you should be accepting this responsibility of kingdom and take this throne, take this as a jewel on your head, forehead. But what Bharat is saying कि इन आभूषणों का सुंदर, ये आभूषण उसी व्यक्ति को सुंदर बना पाएंगे जो व्यक्ति ने पहले से कपड़े पहने हैं. अगर कोई व्यक्ति विवस्त्र अवस्था में खड़ा हो, इफ समवन इज स्टैंडिंग कंप्लीटली नेकेड और उसके ऊपर अगर कोई आभूषण चढ़ाता है, तो वो कैसे दिखेगा? आज बिल्कुल उसी नग्न व्यक्ति की तरह मेरी अवस्था है कि ये सारी चीजें तो आभूषण है, बट मैंने कपड़े ही नहीं पहने. मैं लज्जित हूं क्योंकि मेरी माता ने इतना घोर अपराध प्रभु श्री राम के चरणों में किया है. दिस इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विच ही इज गिविंग. सेकेंड आर्ग्यूमेंट विच ही इज गिविंग इज कि अगर कोई बंदा को वो डिसीज्ड है, इफ ही इज नॉट हेल्दी, और उसको अगर जाके हम उसको अगर मान लो पेट की बीमारी और उसको जाके अगर हम स्वीट्स खिला रहे हैं, तो वुड दैट स्वीट मैटर एनीथिंग फॉर दैट पर्सन? नहीं. तो ही इज सेइंग कि आई एम ऑलरेडी डिसीज्ड और आप अभी आके मुझे स्वीट्स खिला रहे हो. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज स्वीट्स. And third argument, which is the checkmate point for Guru Vasishtha's argument. Now this is the point where a disciple is counteracting with his Guru, and after this argument, Guru has no words to speak. Just listen what the argument was. Guru Vasishtha gave 3 points. He was supposed to give 3 counter arguments to nullify each and every argument which already Vasishtha had given. Now what argument Bharat is giving? Final, ultimate argument he is giving is कि ये प्रभु श्री राम है और उनकी 2 संपत्तियां है. पहला है अयोध्या और दूसरी संपत्ति है मैं खुद, भरत. मेरा रिलेशन अयोध्या के साथ मेरे स्वामी श्री राम से होके जाता है. तो एक ओनर की अगर 2 संपत्तियां है, तो क्या एक संपत्ति अपने ओनर को छोड़ के दूसरी संपत्ति के ऊपर अधिकार जमा सकती है? How illogical and irrational is that? And I didn't expect that from you, Guru Vasishtha, were the words of Bharata. What an intelligent argument. मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा. He's saying कि I am property of Lord Ram, Ayodhya is property of Lord Ram, I have no direct relationship with Ayodhya and my only relationship with Ayodhya passes through Lord Ram. And then he goes on narrating राजकारण के बारे में कि कौन व्यक्ति केवल इस सिंहासन पे बैठ सकता है. एंड देन ही सेज कि वशिष्ठ, आपने मुझे जिस परशुराम का उदाहरण दिया था कि उन्होंने अपने पिता का वचन रखने के लिए सारे लोगों का संहार किया था, जिस पुरु महाराज का आपने मुझे उदाहरण दिया कि अपने पिता के वचनों को रखने के लिए जिन्होंने फिर से अपना यौवन त्याग दिया, आप किस पिता के बारे में बात कर रहे हो जिस पिता को स्वयं मेरी ही मां ने मारा? आपके लॉजिक में कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है, आप देख रहे हो. नाउ लुक एट द आर्गुमेंट, अनदर आर्गुमेंट व्हिच भरत इज गिविंग. ही इज सेइंग कि ये सारे लोगों ने अपने पिता का वचन रखने के लिए राजसिंहासन संभाला, बट मैंने और मेरी मां ने मिलके मेरे पिता को ही खत्म कर दिया. उनके खून से रक्त रंजित ये सिंहासन के ऊपर मुझे बैठने के लिए आप कह रहे हो. What level of argument is this, Vasishtha Muni? And then he says कि अगर इस दरबार में से कोई भी
इंटेलिजेंट व्यक्ति आगे मुझे इसके बाद आगे फिर से कहेगा कि तुम इस राज सिंहासन का स्वीकार करो, तो आई वुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि त्रेता युग खत्म हो चुका है, कलयुग की शुरुआत हो चुकी है. दिस वॉज द लेवल ऑफ आर्गुमेंट ही वॉज गिविंग. और ये सुनने के बाद जो प्रजा सुन रही है, ऑफ कोर्स वशिष्ठ वॉज नोइंग व्हाट इज, he was completely sure कि he is not having any malintentions in his mind, but he wanted to exemplify the same thing to his subjects in अयोध्या. और जैसे ये बड़ा मोनोलॉग भरत महाराज का अयोध्या के सारे लोग सुनते हैं, उनके आंखों से आंसू आने शुरू होते हैं कि कितना प्रेम, कितना सरेंडर एक व्यक्ति का अपने बड़े भाई के प्रति हो सकता है. और तब जाके एक व्यक्ति पूरे राज दरबार में उठ के ऐलान करता है कि इसके पश्चात इतिहास में अगर कोई, नॉट ओनली इन दैट टाइम, इसके पश्चात अगर फ्यूचर में भी जब ये चीज इतिहास में नमूद हो जाएगी, तो फ्यूचर में जाके भी इतिहास को देखते हुए अगर कोई भी व्यक्ति भरत के ऊपर, भरत के चरित्र के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास करेगा कि वो भी इन्वॉल्व था कैकेयी के प्लान में, तब वो व्यक्ति तत्काल नरक की यातनाएं भुगतना स्टार्ट कर देगा. दिस वॉज अ श्राप गिवन बाय someone staying in Ayodhya after listening to Bharat Maharaj. Now that was the misunderstanding which he solved, and that was the level of transformation which he was able to arrange. And then Bharat Maharaj is giving another example to Guru Vasishtha. जैसे आपने कहा था कि this mental illness is contagious, वैसे ही मेंटल इलनेस से तारने वाला व्यक्ति का भी जो माइंडसेट है, दैट इज ऑल्सो कंटेजियस. मैंने ये माइंडसेट आपको दिया, आपने ये माइंडसेट पूरी प्रजा को दिया, और अभी पूरी प्रजा का कॉन्फिडेंस जीतने के बाद हम सभी लोग जाएंगे किसके पास? स्वतः राम के पास जाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आके आपका राज सिंहासन संभालिए. एंड देन ही इज गिविंग अनदर आर्ग्यूमेंट टू गुरु वशिष्ठ. व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग कि हे वशिष्ठ, अगर मेरे पिता ही नहीं रहे जिन्होंने वचन दिया था, राम जी को ये आज्ञा दी थी, अगर वो पिता ही नहीं रहे तो उनके वचन का क्या मूल्य रहता है? तो आई वुड एक्सप्लेन दिस थिंग टू लॉर्ड राम एंड आई एम श्योर ही वुड बी कन्विंस्ड एंड ही विल बी कमिंग बैक विद मी. और ये कहते हुए वो पूरे नगर में बोलते हैं कि सब लोग तैयारियां पैक करो, हम जा रहे हैं मिलने किससे? आपके आराध्य प्रभु श्री राम से. और जैसे ये बात सब लोग सुनते हैं, बड़ी जोरों शोरों से तैयारी होती है. एक पूरी आर्मी की यूनिट भरत महाराज सामने भेजते हैं और कहते हैं कि इस आर्मी की यूनिट ने सारे लोगों को जाने के लिए कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए रोड्स का कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली स्टार्ट किया जाए. दिस वाज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच भरत महाराज गेव फ्रॉम अयोध्या आफ्टर लॉर्ड राम वेंट. और इसके बाद पूरी, मतलब एक नव यौवन पूरी अयोध्या में आया था कि जैसे एक प्रेमी अपने प्रेयसी को मिलने के लिए कैसा लालायित होता है, बिल्कुल वैसे ही लालसा पूरी अयोध्या के मन में है. और सबसे आगे चल रहे पूरी अयोध्या वासियों के एकदम पीछे एक स्त्री थी जिसका नाम था कैकेयी, जो बड़ी ही शर्मिंदगी से अपना चेहरा ढक के सबसे पीछे चल रही थी. क्यों? अभी उसको उसका रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है. बट उसके पास कोई भी ध्यान ना देते हुए सब लोग आगे चल रहे हैं. ठीक है, बट कौशल्य was there, सुमित्रा was there, they didn't give up upon even कैकेयी. That was the character of कौशल्य. ये लोग पीछे से चल रहे, उनके लिए एक छोटी सी प्रोटेक्शन यूनिट है और वो चल रहे. नाउ अब तक कितने हमने देखे? 3 प्रॉब्लम देखे. बोर हो रहे हैं और थोड़ा फास्ट करो, स्लो करूँ, या जो चल रहा है चलने दो. थोड़ा सा एक्सटेंड होगा 10-15 मिनट. इट इज फाइन. ओके फाइन. इंटरेस्टिंग राइट? तो अभी जा रहे हैं भरत महाराज की पूरी आर्मी को लेके. वी हैव नाउ लेफ्ट अयोध्या एंड इसके बाद दे आर नाउ दे केम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. इस गंगा के तट पे ही प्रभु श्री राम भी आए थे जब वो वनवास में चले गए थे. अभी भरत महाराज सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी अयोध्या को, नगरी को लेके अगर मुझे ये गंगा का तीर क्रॉस करना है तो मुझे इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नीड होगा ना. एक तो मुझे पूरा पुल बिल्ड करना होगा, या फिर इतने ये चाहिए होंगे, क्या बोलते उसे, बोट्स चाहिए होगी. एंड ही फाइंड्स अ कम्युनिटी ऑफ बोटमैन स्टैंडिंग ओवर देयर. और ये चीज दूर से देख रहा है कौन? निषादराज गुहा. श्रृंगवेरपुर नगरी के तट के ऊपर इस नगरी का एक प्रधान निषादराज गुहा. ये वही गुहा है
जिसने प्रभु श्री राम को गंगा क्रॉस करने के लिए मदद की थी, और ये दूर से खड़ा होते हुए देख रहा है कि अयोध्या की कंप्लीट आर्मी अयोध्या का नेशनल फ्लैग लेते हुए इस ओर बढ़ रही है जिस दिशा में मेरे प्रभु श्री राम गए हैं। नाउ ही थिंक्स कि अगर भरत इस आर्मी को लीड कर रहा है, इसका मतलब यही है कि इसको प्रभु श्री राम का मूल से खात्मा करना है, जिसका अर्थ ये होगा कि प्रभु श्री राम अगर 14 साल के वनवास के पश्चात भी रिटर्न नहीं आ पाएंगे तो थ्रोन का तो चांस ही नहीं, मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मे बी ही इज प्लानिंग टू अटैक लॉर्ड राम, और इसके लिए this Ganga river is stopping them in between. Let me go and interact with Bharat and find out what his exact intentions are. Misunderstanding number 4. Now he goes over there and he pays obeisances to Bharat, because Bharat is the glorious son of Dashrath and the glorious son of Raghukula. So he pays his homage and obeisances. He brings a pot of honey with him and gives that pot of honey as a gift. And he says, and Bharat is asking him कि हे गुहा, अगर हमें ये रिवर क्रॉस करनी है तो क्या कोई दूसरा मार्ग है? Guha is saying no, there is only one marg. You have to cross this river. And he has already signaled his boatmen कि अगर मैं कुछ भी सिग्नल दूंगा तुम्हें तो तुमने सारी बोट्स को तत्काल जला देना है, ताकि हमारे ऊपर आक्रमण करके भी अगर हमें हरा के अगर ये आर्मी पूरी आगे जाती है तो भी आगे नहीं जानी चाहिए। That was the planning of Guha, कि ये पूरी की पूरी बोट से जला डालो जब मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा, ताकि अगर हम इस युद्ध में मरते भी हैं तो भी ये लोग आगे जा ना पाए। ठीक है, तो what he is doing, but just look at the diplomacy he is playing. He is bringing a gift which is a pot filled with honey, बहुत ही मीठा शहद, and he is gifting it to Bharat. And at the time he is holding it to Bharat, he is saying कि I have one question to ask, and if you give answer to that question, I'll personally make sure कि all these boatsmen will drop not only you but all these subjects to on the other bank of river Ganga. So he's saying कि Bharat is saying, oh yes, please, you can ask me whatever you want. And he gives that अभी तक उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया, उनके हाथों में just भरत महाराज के हाथों में ये शहद का मटका होता ही है, और गुहा पूछ रहा है आपका प्लान तो यही है ना कि आपको राम को मार के उनका सिंहासन लेना है? अभी तक तो आपके पास सिंहासन है, या आर्मी आप लेके आ रहे हो, लीड करते हुए आ रहे हो, बट आपको उनका समूल नायनाट करना है ना, ताकि आप लक्ष्मण को भी मार दो, आप राम जी को भी मार दो, और आप सीता जी को भी ये कर दो, ताकि क्या होगा, फिर आपको पूरा का पूरा राज्य ही आपको मिल जाएगा। जैसे ये वचन सुनते हैं भरत महाराज, अभी इधर तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला था, अभी थोड़ा सा उनका ग्राफ ऊपर जाना चालू हो ही गया था। वो कहते हैं कि हे गुहा, तुम्हारे शब्दों ने मेरे हृदय में सीधा छुरा खोप दिया है, और सिर्फ खोपा ही नहीं है, तुम उसे तुम्हारे शब्दों से ट्विस्ट भी कर रहे हो। इतना दर्द मुझे, इतना पीड़ा मुझे हो रही है। और क्या तुम्हें लगता है मुझे देख के कि मेरा जैसा आश्रित व्यक्ति प्रभु श्री राम के प्रति ऐसी भावनाएं रखता होगा? और वो प्रभु श्री राम को थोड़ा सा गुणगान करके गुहा के इन शब्दों को पूरा ही इग्नोर कर देते गुहा के द्वारा। नाउ दिस इज अनदर क्वालिटी व्हिच भरत इज शोइंग। पहले लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया था, एट ईच एंड एवरी स्टेप हिज वे ऑफ रिएक्शन वाज डिफरेंट, बट जब गुहा इंटरैक्ट कर रहा है तो भरत महाराज का वे ऑफ इंटरैक्शन वाज कंप्लीटली डिफरेंट। हिज वे ऑफ इंटरैक्शन वाज कि तुम पहले तो मैं तुम्हारा सुनूंगा, बट बाद में मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगा। पर जैसे ही इनको गुहा को पता चलता है कि इज नॉट हैविंग एनी माल इंटेंशन, ही स्टार्ट्स प्रेजिंग हिम लाइक एनीथिंग। पूरा प्रेज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ही स्टार्ट्स टू ग्लोरीफाइंग हिम कि हाँ, मुझे लगा ही था आपके जैसे भरत से ये कभी गलती हो ही नहीं सकती, आप इस प्लान में कभी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते, एंड आपको कभी इस राज सिंहासन पर बैठने की आसक्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। और वो इतना बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है भरत महाराज के ऊपर। उधर भी भरत महाराज सेम ही चीज करते हैं। क्या करते हैं? पूरा इग्नोर। नाउ व्हाट भरत इज शोइंग थ्रू हिज कैरेक्टर ओवर हियर, हमें ऐसे बहुत सारे ड्युअलिटीज को लाइफ में फेस करना होगा अपने रिलेशनशिप्स में इंटरेक्ट करते हुए, कि सामने बैठा बंदा बंदी अननेसेसरीली अपने को ग्लोरीफाई कर रहा है या अननेसेसरीली अपने को क्रिटिसाइज कर रहा है।
considering his level of intelligence, considering his position in your life, what you should be doing? Ignoring them. Bharat Maharaj was equally disposed in his interaction, even when he was criticized by Guha and even when he was highly glorified by Guha. हमारे साथ तकलीफ क्या होती है? हमारा मन हमें क्या बताता है कि जो मेरी प्रशंसा करे वो मेरा मित्र, जो मेरी प्रशंसा ना करे या जो मेरे बारे में बुरा भला बुरा बाहर रूमर जाके स्प्रेड करे या मुझे गलत सलत बोले, वो मेरा एनिमी. This is the simple pity thing on which we operate. But what Bharat Maharaj is giving over here, a very important lesson which I want all of us to remember over here is, never give control of your emotions in third person's hand. I'm repeating. कभी भी अपने जीवन का, अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल सामने वाले बंदे को मत दीजिए. कभी भी रिलेशनशिप में इतना सरेंडर ना करिए कि सामने वाला प्रेजेंट व्यक्ति जो स्त्री या पुरुष है वो आपको उसके ताल पे नचाना चालू कर दे. अगर वो हैप्पीनेस का बटन दबाएगा तो तुम बंदर की तरह खुश होके छलांग मार रहे हो. अगर वो सैडनेस का बटन दबाएगा उसमें रिमोट कंट्रोल के ऊपर तो तुम सैड कर रहे हो. यू आर गेटिंग सैड, यू आर गेटिंग मोरोस. वो बंदा बंदी होता कौन है? तुम्हारा इमोशन चेंज करने. So the lesson we want to learn over here is when ऐसी misunderstandings होती है रिलेशनशिप में, the best possible outcome is ignore. जो ऐसे नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना कि they try to control other person's feeling. तू अगर नहीं आएगा मेरे पास, तू अगर नहीं आएगी मेरे पास तो मैं फांसी ले लूंगा, मैं आई ईट पॉइजन और मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा, नस काट दूंगा. और फिर वो नस काट के उस खून से भरा लेटर उसको लिखा जाता है कि यू आर माई दिस, यू आर माई दैट एंड ये वो. नो, व्हाट इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर? सिंपली इग्नोर. क्योंकि जितना उसके साथ एंगेज करते जाओगे, उतना ही वो ये नहीं होगा, हील नहीं होगा. ओनली सिंपल सोल्यूशन इज टू इग्नोर सच पीपल. कोई भी दूसरा सोल्यूशन है नहीं. अंडरस्टैंडिंग उनका लेवल कितना है आपकी लाइफ में, ठीक है? नाउ ऑल दीज लेसन्स आई एम गिविंग टू यू डिफरेंट phases of your relationships. May it be with one person, may it be with multiple people. Okay? तो इससे से लेसन हमने क्या सीखा कि never give the control of your emotions in third person's hand. फिर वो कोई भी रहने दो. किसी को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने चीजों से मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर सके. मतलब कोई मुझे गाली देके भाग जा रहा है, बाद में जाके मस्त इडली डोसा खा रहा है और मैं उधर वो क्या बोल के चला गया, क्या बोल के चली गई, वो लेके मैं रो रहा हूँ. क्यों? I'll give you one very beautiful example. अगर मैं आपको कोई गिफ्ट देता हूँ, वो गिफ्ट अगर आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो क्या वो गिफ्ट कभी आपके पास आएगा? नहीं, राइट? इट इज इन योर हैंड्स कि तुम्हें वो गिफ्ट स्वीकार करना है नहीं करना है. इवन इफ आई एम फोर्सिंग यू लॉर्ड, आपको वो पूरा पहचान रखना है खुद का कि मैं कितना इसमें इन्वॉल्व हूंगा. I'll give a very beautiful example which I often quote. अगर जब एरोप्लेन जमीन से जा रहा होता है रनवे के ऊपर, साइड में बड़ी बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी दिखती है और उसको सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी रहते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी सिग्नल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं. लेकिन द मोमेंट दिस एरोप्लेन टेक्स ऑफ, जैसे एरोप्लेन ऊपर 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 पर जाता है आसमान में, क्या वो बिल्डिंग की साइज सच में छोटी होती है? नहीं, वो बिल्डिंग एक्चुअल में जितनी साइज की उतनी साइज की है, बट तुम्हें कैसे परसीव हो रही है? वो छोटी हो रही है, राइट? क्या इन रियलिटी वो बिल्डिंग छोटी हो रही है? इन रियलिटी क्या हो रहा है? तुम अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इतना बढ़ा रहे हो कि नीचे से कितना भी बिल्डिंग्स आए जाए, नीचे से कितना भी डिस्ट्रैक्शंस आए, नीचे से कितने भी सिग्नल्स भी आए, क्या तुम्हें नीचे खड़ा पुलिस मामा बोल सकते अरे रेड सिग्नल है, एरोप्लेन रुक जा? नो, यू कैन नॉट डू, राइट? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ट्रांसेंडेड दैट प्लेन. तुम्हें इस प्लेन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं. You already have uplifted yourself to such a level कि नीचे से कुछ भी आए जाए फर्क ही नहीं पड़ रहा. You're simply ignoring those things. This is exactly what is expected from all of us. But हम क्या करते हैं? उस चंगुल में इतना फंस जाते हैं कि अपना एरोप्लेन का फ्लैप्स ऊपर करने को ही भूल जाते हैं और उसी चंगुल में रनवे पे ही अपना एरोप्लेन भगा देते. क्या होगा? रनवे खत्म होगा, एक्सीडेंट होगा. Which is what happens in our relationships. So this was the lesson. So when someone is very suspicious about us, there is that meme, right? What he is not present in relationship with me, what he might be doing.
एंड देन कट टू वो अपने बंदों के साथ कहीं तो खेल रहा है, कूद रहा है, एंड व्हाट दिस लेडी इज थिंकिंग, ही माइट बी रियली चीटिंग ऑन मी. यू हैव सीन दैट मीम राइट? वेरी फेमस मीम. देखते हो कि नहीं मीम भाई? बोलो कुछ तो. जेंजीज राइट? मतलब मिलेनियम्स भी होंगे कोई बुढ़े, बट हाँ मोस्ट ऑफ देम. बट हाँ, so my point to convey over here is कि just like that meme, कोई बंदा अपने ऊपर इतना शक कर रहा है, what do you need to do? Just ignore. वो अपना फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा है वहां पे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ये घर पे बैठ के कितना ओवरथिंक कर रही है मेरे बारे में. This is what exactly we need to do in our relationships. I'm not saying you shouldn't be paying attention to all your respective spouses or partners, but only thing I'm saying is कि हद होती है कितना attention देना है. We'll move. So the thing which I wanted to convey over here was कि जब भी ऐसे situations में हम stuck हो जाते हैं, what we need to do is we don't need to you don't need to pay heeds to all the tantrums which that lady or that guy is throwing into your life, but simply you need to give some space कि भाई अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, please give me a breather, right? And जब ये breather हमें मिलता है तो what is happening next? एक चीज होती है भरत महाराज के साथ, वो गंगा क्रॉस कर रहे हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं, गुहा कह रहे हैं कि सामने भारद्वाज मुनि का आश्रम है, यहाँ जाके आप भारद्वाज मुनि से पूछिए कि राम जी गए कहाँ है, और वो आपको आगे गाइड करेंगे कि आपको जाना किधर है. नाउ देयर एज सून एज ही हियर्स कि भारद्वाज मुनि का आश्रम है, तो he says कि let us not everyone go over there and disturb the peace of the situation of his surrounding. So he asks Guru Vasishtha to come with him to escort him and says कि हम दोनों प्लीज जाते हैं और उनको कहते हैं कि आगे क्या करना है. Now Guru Vasishtha's ashram was so beautifully situated और उन्हें वो त्रिकालदर्शी, उनको पहले ही पता था कि क्या क्या हो रहा है और अभी भरत यहाँ पे आने वाला है. What he did, he purposely chose a place next to Ganga, a very beautiful place next to Ganga. Ganga is like mother, so no one can very blatantly speak lies in front of mother. Was the consciousness of Bharadwaj Muni. At the same time, he surrounded himself with a group of co-monks and rishis, so that each and every rishi was so competent that he could not only see the present of Bharat but also the past and future of Bharat. And in center, he himself sat and he welcomed Bharat over there. और जैसे ही भरत वहां पे आते हैं, भरत क्या करते हैं, अपने इनको भारद्वाज मुनि को नमन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भारद्वाज मुनि, मैं आपके शरण में आया हूँ और इतनी सुंदर जगह में आपको आके प्रार्थना कर रहा हूँ. क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे बताइए प्रभु श्री राम कहाँ है, और मुझे उनसे मिलने की उत्सुकता इसलिए है क्योंकि मुझे उनको पुनः अपने अयोध्या में लेके जाना है. और इतना मीठे शब्दों से वो उनको कहते हैं कि दिस इज द पर्पस दिस इज व्हाई आई हैव कम ओवर हियर एंड दिस इज द पर्पस ऑफ मी कमिंग ओवर हियर. ये दोनों वो रख रहे हैं सामने. नाउ ही इज शोइंग वन मोर एग्जांपल ओवर हियर कि व्हेन वी मीट अ सीनियर पर्सन जो भारद्वाज मुनि के रोल प्ले कर रहे हैं हमारे लाइफ में, मे बी दे बी आवर पेरेंट्स, मे बी दे आर टीचर्स, मे बी दे आर मेंटर्स, what should be our approach? We should be very clear and very vocal about why are we expecting to meet you and what is the motivation for us to come and meet to you. ठीक है? तो ये कह के वो वशिष्ठ मुनि ऐसे है कि वो पूरा इग्नोर कर रहे हैं भरत को और वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा उद्देश्य ना. दिस इज सेकंड टाइम who is directly confronting Bharat, but his reaction is totally different. What he is saying, he is repeating the words of Guha, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, कि क्या तुम्हारा उद्देश्य राम को मार के उस सिंहासन के ऊपर बैठना है? अगर तुम्हारा उद्देश्य ऐसा है तो तुम्हें आगे जाने का मार्ग मैं नहीं बताऊंगा. और जैसे ये शब्द गुरु वशिष्ठ गुरु भारद्वाज कहते हैं भरत महाराज को, भरत महाराज क्या कह रहे हैं? नाउ हिज रिएक्शन इज टोटली डिफरेंट एट दिस पॉइंट. मतलब आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई तुम्हारा इक्वल लेवल पे तुम्हारा स्पाउस या पार्टनर अगर तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो व्हाट शुड बी योर लेवल ऑफ डीलिंग. और अगर एल्डर्स तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी योर लेवल, व्हाट शुड बी योर वे ऑफ डीलिंग इट. उनको इग्नोर नहीं कर रहा है. व्हाट ही डज इज ही स्टार्ट्स क्राइंग ओवर देयर कि हे गुरुदेव, आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि आप पर्पसली इस गंगा के किनारे बैठे हो ताकि मैं झूठ ना बोल पाऊं.
आप पर्पसली इन ऋषियों के बीच में बैठे हो ताकि ये सारे ऋषि आपके साथ त्रिकालदर्शी है, आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी पता है। आपके मेरे साथ यहाँ वशिष्ठ मुनि भी खड़े हैं। इतने पवित्र स्थान पे क्या मैं झूठ भी बोल सकता हूँ? और यदि मैं झूठ बोलूं भी, आप सब लोग इतने सक्षम हो कि मैं ना बोलते हुए आप मेरे मन की भावनाओं को पढ़ लेंगे और आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूं। उसके पश्चात भी मैं मेरे साइड से कुछ डिफेंस में ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे गुरु वशिष्ठ से पूछिए क्या मेरा इंटेंशन इतना बुरा है। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ इस बात की पुष्टि देते हैं कि नो, there is no reason for him, there is no reason to misunderstand him, there is no reason to criticize him, वैसे ही भरद्वाज मुनि एक स्माइल देता है और he is saying कि I know कि रघुकुल के संस्कार कभी इतने नीचे लेवल तक नहीं जा सकते, बट क्योंकि इतिहास में ये कॉन्वर्सेशन स्क्रिप्ट चला जाएगा आगे आने वाले लोगों के लिए, I just took this testimony, I am just putting this incident over here, ताकि किसी को अगर तनिक भी शंका हो और किसी को अगर वे ऑफ डीलिंग भी समझना होगा किसके साथ कैसा होना चाहिए, दैट वाज द सोल रीजन व्हाई आई ऑर्केस्ट्रेटेड दिस ड्रामा। क्यों? वर्ड्स वर सेम बट सिचुएशंस माइट बी डिफरेंट, एंड इफ सिचुएशंस आर डिफरेंट एंड वी अप्लाई द सेम लॉजिक एट ऑल द प्लेसेस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो देयर कैन बी हैवॉक। अगर वो इग्नोर भरद्वाज मुनि को करते और गिड़गिड़ाते गुहा के सामने, तो पिक्चर अलग ही होती, राइट? बट हियर भारद्वाज मुनि वांटेड टू एस्टैब्लिश कि हाउ अ पर्सन शुड बी डीलिंग विद व्हेन मिसअंडरस्टूड, व्हाइल ही इज डीलिंग विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिलेशन ही इज हैविंग विद दोस पीपल। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे अभी हम गुरु भारद्वाज मुनि ये कह रहे हैं कि आप सभी आपके अयोध्या वासियों को भी यहाँ पे बुलाइए और अयोध्या वासियों को कहे कि आप सब लोग थके हुए होंगे, तब तक मैं क्या करता हूँ, आप मेरे मंत्रों की शक्ति से आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर भोजन का आयोजन करता हूँ। इतना ही नहीं, आप थोड़ा सा विश्राम भी करिए। आप पूरी अयोध्या वासियों के लिए एक सेपरेट अयोध्या में इस भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही एस्टेब्लिश करता हूँ कि आप सभी को कुछ भी अगर आने में कष्ट हुआ होगा तो यहाँ पे रेस्ट करके फिर आप आगे चले जाइए। और जैसे ये सुनते हैं भरत महाराज कहते हैं मुझे तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे साथ किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई नीड टू कंसल्ट विद देम एंड आई नीड टू मेक श्योर कि देयर कंफर्ट इज वेल मेट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ठीक है, वो प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं और अयोध्या के सारे नगरवासियों को बुलाते हैं, उनके सोल्जर्स को, उनकी पूरी कैवलरी, इन्फेंट्री एंड नॉर्मल हैबिटेट्स ऑफ अयोध्या कि आप आइए। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया गया है गुरु वशिष्ठ के द्वारा। और गुरु वशिष्ठ क्या करते हैं, वेलकमिंग के लिए सुंदर सुंदर कन्याएं वहाँ पे दोनों साइड्स के, पूरी नगरी बनी हुई है वहाँ पे, दोनों साइड्स पे सुंदर सुंदर कन्या वहाँ पे दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर टू वेलकम ऑल द नगरवासीज ऑफ अयोध्या। इतनी मधुर हवा बह रही है कि इट इज ऐसे लग रहा है कि मानो किसी ने परफ्यूम्स वहाँ पे ये किए हो। तो इतना सुंदर हवा बह रही है, बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, सुंदर सुंदर म्यूजिक चल रहा है और सामने ही कोई एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और एक साइड में पूरा खाने का इंतजाम भी किया गया है। सारे लोग एंटर करते हैं एक्सेप्ट वन पर्सन। हु इज दैट पर्सन? भरत महाराज after looking at that Ayodhya, after looking at that खुशहाल Ayodhya, he is reminded of his old days when while he was in the Ayodhya, the real Ayodhya. तब ये देखते हुए वो रो रहे हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने इमोशंस को किसी को ना वो दिखाना भी नहीं चाहते कि मैं इस इमोशंस में जा रहा हूँ। वो क्या कर रहे हैं, सभी के पीछे, उस पूरा ग्रुप आगे चला जाता है, पीछे ही बैठ के उस नगरी के डोर पे ही शांति से क्रंदन कर रहे हैं ताकि किसी के मूड में भी भंग ना आए। अगर मुझे रोते हुए अगर कोई देखेगा तो अयोध्या वासी भी क्या खुश रह पाएंगे? नहीं। अभी जो अयोध्या वासी अंदर एंटर किए, दे आर टेकिंग दे आर एंजॉयिंग अप टू देयर फुलेस्ट। कोई एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई रेस्ट कर रहा है, एवरीवन इज हैप्पी। एंड फिर उसके बाद किसी एक विरले व्यक्ति की नजर
भरत महाराज के ऊपर जाती है और वो सभी को एक साथ लाता है और वो कहता है कि इस नगर के बिल्कुल बीचों बीच भारद्वाज मुनि ने एक सिंहासन की स्थापना की है भरत महाराज के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि हे भरत महाराज, आप आइए हमारे साथ, हम आपको एस्कॉर्ट करते हैं और कुछ क्षण इस सिंहासन पे आप विराजमान होइए। और खुद की इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए भरत महाराज इन सभी लोगों के साथ, इन सभी लोगों के कहे हुए वर्ड्स को रिस्पेक्ट देते हुए उनके साथ उस नगरी में, जो शैडो अयोध्या है, उसको उस नगरी में एंटर कर रहे हैं। और जैसे ही वो सारी जगह पे खुशहाली देख रहे हैं, वो अंदर से खुश भी है कि मेरे अयोध्यावासी इतने खुश हैं, पर एक बहुत बड़ा कोना उनके हृदय का खाली है कि मेरे प्रभु श्री राम इस कोने में अभी है नहीं। और वो खुद से ही मन में प्रभु श्री राम से वार्तालाप शुरू कर रहे हैं। क्या? ही इज इमेजिनिंग। मतलब ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ अगर हमारा हृदय जुड़ जाए, उसके प्रति हमारा प्रेम हो जाए, तो उस व्यक्ति का सामने होने की भी आवश्यकता नहीं होती। यू नेचुरली स्टार्ट कॉन्वर्सिंग विद हिम। और वो खुद से बात कर रहे हैं, मन ही मन प्रभु श्री राम से बात कर रहे हैं कि क्या प्रभु श्री राम, आप ना होते हुए अगर मैं इन खुशहालियों का भोग करने का ट्राई करूंगा, तो क्या ये आपके प्रति रिस्पेक्ट होगा या आपके प्रति डिसरिस्पेक्ट होगा? ये सोचते 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 वो राज सिंहासन तक आए हैं। एंड नाउ एवरीवन इज चैंटिंग भरत की जय, भरत की जय, भरत की जय, एंड प्रपोजिंग हिम कि आप जाके उस राज सिंहासन का स्वीकार कीजिए, आप उस सिंहासन का स्वीकार कीजिए। नाउ भारद्वाज मुनि गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लॉजिक। ये अयोध्या है भी नहीं, ये मैंने तुम्हारे ही एंजॉयमेंट के लिए बनाया हुआ कोई प्लेस है, तो तुम भरत क्या करो, उस सिंहासन की सीढ़ी चढ़ के सिंहासन पे जाके बैठ जाओ। अगेन वेरी लॉजिकल पॉइंट। भरत महाराज क्या कर रहे पता है? भरत महाराज टू एवरीवन्स एस्टोनिशमेंट सीढ़ी चढ़ रहे हैं। भरत महाराज राज सिंहासन की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और जैसे ही राज सिंहासन के समक्ष आते हैं, सामने, बिल्कुल सामने आते हैं, वो हृदय में स्थित राम जी की मूर्ति को इमेजिन कर रहे हैं कि यही राम अभी इस सिंहासन पे बैठे हुए हैं। और उन राम को मन में जो चित्र था, वो चित्र रूपी राम को उस सिंहासन पे स्थापित करके उस सिंहासन के प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और प्रदक्षिणा के हर एक पग पे वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जैसा कोई अभागी व्यक्ति इस पूरी भूतल पे नहीं होगा जो अपने भाई को वनवास छोड़ के अपने पिता से रक्त रंजित सिंहासन की अपेक्षा करते हुए इस चकाचौंध का, भोग विलास का ये कर अभिलाषा कर रहा है, भोग कर रहा है। और वो जैसे ही 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं उस राज सिंहासन का, वो उस राज सिंहासन के बिल्कुल चरण के समीप बैठ जाते हैं और मन ही मन जो अभी श्री राम की प्रतिकृति थी, वो श्री राम को अपने सामने देखते हुए श्री राम की चरण सेवा कर रहे हैं। बाहर से देखने वालों को लग रहा है कि भरत क्या कर रहे हैं, वहां पे कौन बैठा है। और भरत महाराज को केवल ये चीज पता है कि इधर बैठे मेरे श्री राम है और उन श्री राम के चरणों की मैं सेवा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आज तक गुलाब के पुष्प, अगर वो चलता था तो गुलाब के पुष्प नीचे बिखरे हुए होते थे, वो अगर किधर बाहर जाता था तो उसके एक आवाज पे हजारों रथ सामने आके खड़े होते थे अगर उन्हें किधर जाना है। आज वही मेरे भ्राता केवल मेरे कारण इस जंगल में, इन कांटे कंकड़ों के बीच में बिना अपनी पादुकाएं पहने भ्रमण कर रहे हैं। और उस चीज का स्मरण करते हुए जब राम जी एक एक पग अरण्य में रख रहे हैं, उस एक एक पग पे होने वाले राम जी के चरणों की वेदना यह भरत अपने हृदय में महसूस कर रहा है। और वो कल्पना कर रहा है कि ऐसे श्री राम की चरण सेवा में करूंगा, उनके चरण थोड़े से दबाऊंगा, उनको जो कष्ट हुआ है उन कष्ट से मैं मुक्त करूंगा। और ये चीज देखने के पश्चात ये एपिसोड केवल 2 ही लोगों को समझता है कि भरत महाराज क्या कर रहे हैं। वो 2 लोग थे, गुरु वशिष्ठ और गुरु भारद्वाज।
और गुरु भारद्वाज ये चीज देखने के बाद कहते हैं कि भरत तुम जीत गए, तुम्हारे सामने हमारी इतनी विद्वत्ता, मेरे और गुरु वशिष्ठ की इतनी विद्वत्ता भी विफल है। किसी एक राजकारणी व्यक्ति की जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है वो ज्ञान भी विफल है। पूरे समस्त का विश्व का जो ज्ञान मार्ग है वो आज पूरा ज्ञान मार्ग तुम्हारे चरणों में नतमस्तक है, तुम्हारा राम जी के प्रति प्रेम और उनका समर्पण देखते हुए। और इसी बात पे भारद्वाज मुनि का ये रखा हुआ आखिरी टेस्ट था कि क्या कोई व्यक्ति एक मिशन लेके तो आगे जाता है, लेकिन अपने मिशन में अगर उसे कोई प्रलोभन आते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि मैं बहुत पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते जिस लैपटॉप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस टेक्नोलॉजी में भी माल प्रैक्टिसेस आर जस्ट वन क्लिक अवे। सो व्हेन आई एम ऑन माय मिशन, इज माय monkey mind distracting me, and if it is distracting me, am I falling for those distractions? Was the test which Bharadwaj Muni wanted to take off Bharat Maharaj। और ये फाइनल मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे ही क्लियर होती है, स्वयं भारद्वाज मुनि अपनी माया समाप्त करते हैं, वो जो दृश्य था वो समाप्त करते हुए भरत महाराज को आगे का मार्ग देते हुए, फिर आगे की स्टोरी आपको पता ही है। And at this very sweet moment, I'll like to give a pause to my words, and if you have any doubts, कोई अगर अभिप्राय हो, कोई कमेंट्स हो, कोई टीका हो, टिप्पणी हो, I would like कि या किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज put forth, I'll try to answer that question with my capacities. That's it. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Yes, any questions? Okay, I take that as no. क्या आगे क्या अनाउंसमेंट शुरू?